गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो एक्सपेरिमेंट है इसका एम है टू प्रिपेयर अ मिक्सचर अ कंपाउंड यूजिंग आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, बिहेवियर टुवार्ड्स मैग्नेट, ये गलत लिखा है बच्चों, मैग्नेट है, बिहेवियर टुवार्ड्स कार्बन डाइसल्फाइड। यहाँ पर हमें कार्बन डाइसल्फाइड को एज अ सॉल्वेंट यूज करना है एंड इफेक्ट ऑफ हीट। तो बच्चों सबसे पहले मैं इससे रिलेटेड आपको वीडियो जो है वो शो कर देता हूं। Distinguish between mixture and compound. Using a spatula, take a small quantity of sulfur powder and transfer it into a beaker. Add a small quantity of iron fillings into the same beaker using a spatula. Stir the contents of the beaker using a glass rod and label this mixture as A. Take a china dish and using a spatula transfer a small quantity of the mixture into it. Heat the contents in the china dish strongly by placing it on a wire gauze that is placed over a burner. Stir the contents constantly till a black mass, that is compound of sulfur and iron, is formed. Cool and transfer the contents into a mortar and powder this using a pestle. Then transfer the powdered contents into another beaker using a spatula and label it Black Mass B. Test on the basis of appearance. Take a small quantity of mixture A and black mass B in two different watch glasses. Mix the mixture A in the watch glass using a glass rod. You will see yellow powder in which some iron fillings are visible. Then mix the black mass B in the watch glass using a glass rod. No iron fillings are visible in the black mass B. Thus we infer that a mixture is heterogenic and compound homogeneous in nature. यहाँ पे देखिए बच्चों, मिक्सचर ए जो है वो हेट्रोजीनियस है, जबकि ये जो कंपाउंड है ये क्या है, होमोजीनियस है। Behavior towards a magnet. Place a small quantity of mixture A in a watch glass and a small quantity of black mass B in another watch glass. Show a magnet over the watch glass in which mixture A is taken. Iron fillings cling to the magnet since iron retains its properties. Show the magnet over black mass B. No particles attach to the magnet because iron loses its magnetic properties on forming a compound. Behavior towards carbon disulfide. Take a clean test tube and put a pinch of mixture A into it. Add a few drops of carbon disulfide into the test tube. Shake the test tube well. Sulfur first dissolves, reappears after some time. When in the form of a mixture, sulfur retains its property. Take another test tube and put a pinch of black mass B into it. Then add a few drops of carbon disulfide into the test tube. Shake it well. No changes observed. In compound state, FeS, sulfur lost its original. बच्चों वीडियो तो हमने देख लिए, अब हम चलते हैं सीधा प्रिकॉशंस पर। सबसे पहला, इसमें जो आप केमिकल्स यूज़ करोगे उनको आपको केयरफुली हैंडल करना है। दूसरा, कार्बन डाइसल्फाइड जो आप यूज़ करोगे ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, फ्लेमेबल होता है, तो इसको आपको क्या करना है, फ्लेम से दूर रखना है।
इसको आपको बच्चों क्या करना है, फ्लेम से दूर रखना है। थर्ड, जब आप आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर को हीट करोगे तो इसको आपको चाइना डिश के अंदर करना है। नेक्स्ट, आपको अपने हाथों को प्रॉपरली जो है सोप से धो लेना है आफ्टर एक्सपेरिमेंट। अब देखिए कुछ थ्योरी के क्वेश्चन है, ये आप ऑलरेडी थ्योरी में कर चुके हो तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब हम चलते हैं MCQs पर। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें उन्होंने कहा है व्हेन आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर आर मिक्स टुगेदर इन अ चाइना डिश। सही है, यहाँ पर हम गर्म नहीं कर रहे हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं, सिंपल मिक्स कर रहे हैं, मतलब उनका मिक्सचर बना रहे हैं। तो हिट्रोजीनियस मिक्सचर रिजल्ट सही है। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट कैन बी इजीली सीन, हाँ जी आपको जो है इजीली दिख जाएगा कि आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर उसमें है। थर्ड, द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय मैग्नेट, हाँ जी जब आप उस कंस्टिट्यूएंट के ऊपर मैग्नेट लेकर जाएंगे तो सारे के सारे जो आयरन फिलिंग्स होंगी वो मैग्नेट के साथ चिपक जाएंगी और चाइना डिश के अंदर आपको सारा का सारा सल्फर पाउडर मिल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ऑल द अबव आर करेक्ट। अब देखिए सेकेंड, इसमें उन्होंने कहा है टू प्रिपेयर आयरन सल्फाइड बाई हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, आयरन सल्फाइड जो है बनाना है, सही है, बाय हीटिंग आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए हम चाइना डिश का यूज़ करेंगे। सही, ना तो आपको यहाँ पर कॉपर डिश यूज़ करनी है, ना ही वॉच ग्लास यूज़ करने हैं, ना ही पेट्री डिश यूज़ करनी है, आपको सिर्फ यहाँ पे चाइना डिश यूज़ करनी है। नेक्स्ट, इसमें उन्होंने कहा है द रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड सल्फर इज अकम्पनीड बाई, जब आप आयरन और सल्फर के बीच में रिएक्शन करवाते हैं तो उस केस में हीट जो होती है वो रिलीज होती है। हम क्या करते हैं, एक चाइना डिश लेंगे, उसमें आयरन और सल्फर को, आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर को आपस में मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद उसको हम गर्म करेंगे। जब आप उसको गर्म करोगे तो बहुत ज़्यादा हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, रिलीज ऑफ हीट होगा बच्चों, क्लियर है। जितना हम उसको हीट करेंगे उससे ज़्यादा हीट क्या होगी, उसमें से निकलेगी। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, रिलीज ऑफ हीट बोलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन मैग्नेट इज रोल्ड इन द कंपाउंड ऑफ आयरन सल्फाइड, आपने आयरन सल्फाइड जो है कंपाउंड बना लिया, अब उसके ऊपर जब आप मैग्नेट लेकर जाओगे तो उस केस में आयरन सल्फाइड जो है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो चुका होगा। आयरन जो उसके अंदर है उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, वो लूज कर चुकी होगी। तो इस केस में क्या होगा, आयरन सल्फाइड डज नॉट क्लिंग टू द मैग्नेट, तो मतलब आयरन सल्फाइड जो है वो मैग्नेट के साथ जाकर चिपकेगा नहीं। सही है, अगर मिक्सचर होता ना आयरन का, आयरन फिलिंग्स का और सल्फर पाउडर का, तो उस केस में जो आयरन फिलिंग्स होती है वो मैग्नेट के साथ जाकर चिपक जाती। सही, मगर यहाँ पर हमने कंपाउंड बना लिया है, तो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती है वो ज़्यादातर डिफरेंट होती है जिनसे वो कंपाउंड बनता है। तो जब तक आयरन और सल्फर का मिक्सचर है, जब तक तो आयरन उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। जब आपने उसको गर्म कर कर कंपाउंड बना लिया तो आयरन क्या करेगा, अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो देगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने कहा है व्हेन अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर इज पुट इन कार्बन डाइसल्फाइड इन अ टेस्ट ट्यूब वी ऑब्जर्व दैट। देखिए जब हम आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर का मिक्सचर किस में डालते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड में डालते हैं, तो क्या होता है, सही है, येलो पार्टिकल्स ऑफ द सल्फर गेट डिजोल्व इन इट। हाँ जी, उसमें जो येलो पार्टिकल्स होंगे, येलो पार्टिकल्स किसके होते हैं, सल्फर पाउडर के, वो क्या होते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट क्या कहा है, ग्रे पार्टिकल्स ऑफ द आयरन गेट डिजोल्व इन इट। नहीं, आयरन जो होता है वो कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर डिजोल्व नहीं होता है। सी, बोथ आयरन एंड सल्फर पार्टिकल्स गेट डिजोल्व इन इट, ये भी गलत है। नाइदर आयरन नोर सल्फर पार्टिकल्स गेट डिजोल्व इन इट, ये गलत है। तो यहाँ पे बच्चों ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर इज इनसोल्यूबल इन, आपको ये बताना है सल्फर जो है इनमें से किस में इनसोल्यूबल होता है। क्लियर है,
हाँ, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर बच्चों सोल्यूबल होता है, वाटर के अंदर नहीं होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर भी नहीं होता है। तो यहाँ पर डी जो है वो ऑप्शन सही है। बच्चों ये वैसे आपके कोर्स में नहीं है। इसमें इन्होंने क्या कहा है, द प्रोडक्शन ऑफ HCl गैस ऑन द एडिशन ऑफ H2SO4 टू NaCl। जब भी हम सोडियम क्लोराइड के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो HCl गैस जो होती है वो रिलीज होती है। आपको बताना है कैसा चेंज है ये बच्चों, कैसा चेंज होगा, ये केमिकल चेंज होगा। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं इनमें हमेशा केमिकल चेंज ही होता है। अच्छा आगे देखिए, इन लेबोरेटरी व्हाट प्रिकॉशन हैज़ टू बी टेकन विद कार्बन डाइसल्फाइड। हमें कार्बन डाइसल्फाइड का यूज़ करते वक्त क्या चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, सही है। देखिए कार्बन डाइसल्फाइड जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल होता है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल लिक्विड होता है। तो इसको हमें क्या करना होता है, डायरेक्ट फ्लेम के कॉन्टैक्ट से हमें क्या करना होता है, इसको बचाना होता है, सही। केप्ट अवे फ्रॉम फ्लेम, हमें इसे फ्लेम से क्या करना होता है, बचा कर रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैग्नेट इज रिपीटली मूव क्लोजली ओवर अ मिक्सचर ऑफ आयरन पाउडर एंड सल्फर पाउडर। सही है, हम क्या करते हैं, आयरन पाउडर और सल्फर पाउडर का एक मिक्सचर ले लेते हैं और उसके ऊपर से हम क्या करते हैं, बार बार मैग्नेट को क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। पहला, आयरन पाउडर इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, सही है, वो अट्रैक्ट होगा, सही। सेकंड, सल्फर पाउडर इज लेफ्ट बिहाइंड, ये भी सही है। सल्फर पाउडर जो होगा वो तो अट्रैक्ट होगा नहीं मैग्नेट से, वो वापस क्या होगा, वहाँ पर चाइना डिश के अंदर रह जाएगा। ब्लैक FeS विल बी फॉर्म्ड, ब्लैक FeS कब बनेगा, जब हम इनको गर्म करते हैं, सही। मैग्नेट पास करने से FeS नहीं बनता है, तो सी तो अब तक गलत है। आयरन पाउडर एंड सल्फर पाउडर आर सेपरेटेड, ये भी सेपरेट हो जाएगा, तो यहाँ पर सी जो है ऑप्शन वो गलत है, सही। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा, क्योंकि उन्होंने गलत वाली स्टेटमेंट ही आपसे पूछी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर। आपको बताना है इनमें से किस केस में मिक्सचर फॉर्म होगा। पहला, क्रशिंग ऑफ अ मार्बल टाइल्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मार्बल की जो टाइल्स हैं उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ रहे हैं, सही। तो यहाँ पे बच्चों मिक्सचर तो बनेगा नहीं, क्यों, हम मार्बल को तोड़कर मार्बल ही बना रहे हैं। सेकंड, ब्रेकिंग ऑफ आइस क्यूब्स इनटू स्मॉल पीसेस, हम यहाँ पर आइस क्यूब्स को तोड़ रहे हैं दूसरे केस में, तो यहाँ पर भी बच्चों मिक्सचर नहीं बनेगा। सी, एडिंग सोडियम मेटल टू वाटर, सोडियम मेटल को जब हम वाटर के अंदर डालते हैं तो इसमें बच्चों सोडियम मेटल वाटर के साथ क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा, सही है। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, कई बार आग भी लग जाती है, क्लियर है। सेकंड, तो यहाँ पर भी मिक्सचर जो है वो नहीं बनेगा, इन तीनों केसेस में बच्चों मिक्सचर नहीं बनेगा। एजिटेशन ऑफ डिटर्जेंट विद अ वाटर इन अ वॉशिंग मशीन, ये होगा बच्चों, ये क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा, सही। एजिटेटिंग ऑफ डिटर्जेंट विद वाटर इन अ वॉशिंग मशीन। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने पूछा है, 4 स्टूडेंट्स A, B, C and D एडिड कार्बन डाइसल्फाइड, पहला, अब टू अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर। सेकंड, आयरन सल्फाइड, दे मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। पहला स्टूडेंट A ने देखा आयरन डिजोल्व इन CH2, कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर वो डिजोल्व हो गया, सही है। इन केस 1, बट आयरन सल्फाइड डिड नॉट डिजोल्व इन, मगर जो आयरन सल्फाइड है वो कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर डिजोल्व नहीं हुआ, क्लियर है। अच्छा, स्टूडेंट बी ने ये देखा आयरन सल्फाइड जो है वो डिजोल्व हो गया किसके अंदर, कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर,
सही, आयरन सल्फाइड जो है वो डिसॉल्व हो गया किसके अंदर, कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर। वेयर एज नाइदर आयरन नॉर सल्फर डिसॉल्व इन वाटर, मगर जो आयरन और सल्फर ये जो है डिसॉल्व नहीं हुए किसके अंदर, कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर। क्लियर है। अब देखिए सी ने क्या देखा, सल्फर डिसॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड। सही बच्चों, ये नीचे आना था इसके 2। देखिए सी ने ये देखा कार्बन डाइसल्फाइड डिसॉल्व इन CH2, तो बच्चों ये तो सही है, कार्बन जो होता है वो कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर डिसॉल्व हो जाता है फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर, बट आयरन सल्फाइड डिड नॉट डिसॉल्व, मगर आयरन सल्फाइड जो है वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हुआ। तो इसके अंदर बच्चों सी जो है ऑप्शन सही है। क्लियर है। देखिए यहाँ पे इन्होंने 3 चीज़ों की बात की है, सल्फर जो होता है वो कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, आयरन जो होता है वो कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है, और जो आयरन सल्फाइड होता है जो कंपाउंड होता है वो भी कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहे ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड गिव द करेक्ट ऑप्शन। सही, आपको बताना इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सही, थर्ड में उन्होंने कहा थर्ड इज एन एलिमेंट, ए पोर्शन में इन्होंने कहा, ए पार्ट में थर्ड इज एन एलिमेंट। सही, इसके अंदर हम पानी के अंदर NaCl डाल रहे हैं। सही, तो यहाँ पर कोई एलिमेंट बनेगा, गलत है बच्चों। सेकेंड इज ए मिक्सचर, हाँ जी, आयरन और सल्फर पाउडर को, आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर को जब आप आपस में मिक्स करते हैं तो वो क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। तो ये सेकेंड वाला पोर्शन बच्चों सही है। क्लियर है। अच्छा फोर्थ में यहाँ पे आपको सल्फर दे रखा है और इनका सल्फर इज ए कंपाउंड, नहीं, सल्फर कंपाउंड नहीं होता है। पहले मैंने कहा वन इज अ वाटर, नहीं जी, वन इज एन एलिमेंट, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वाटर जो है वो एलिमेंट नहीं है, वाटर कंपाउंड होता है। ये बच्चों आयरन और सल्फर को जब आप मिक्स करते हैं तो उससे मिक्सचर बनता है। NaCl वाटर के अंदर जब आप डिसॉल्व करते हो तो उससे कंपाउंड बनता है, और सल्फर जो होता है वो एलिमेंट होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने कहा है सैंपल X इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर। हमारे पास सैंपल X है, वो मिक्सचर है किसका, आयरन और सल्फर का। ऑन सेपरेटली हीटिंग सल्फर इन एक्सेस ऑफ एयर, हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग हीट कर रहे हैं। सही है। ऑन सेपरेटली हीटिंग सल्फर इन एक्सेस ऑफ एयर, Y is formed, which of the following is true for X and Y respectively। क्लियर है। देखिए सबसे पहले उन्होंने कहा अ सैंपल X इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर। जो सैंपल X है ये आयरन और सल्फर का क्या है, मिक्सचर है। सही है। अच्छा अब आगे उन्होंने कहा ऑन सेपरेटली हीटिंग सल्फर इन एक्सेस ऑफ एयर Y is formed, which of the following is true for। अच्छा यहाँ पे बच्चों इन्होंने कहा सल्फर एंड आयरन दोनों लिखना था, सल्फर एंड आयरन मिक्सचर को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, किसके अंदर, एयर के अंदर। क्लियर है। तो देखिए आयरन और सल्फर का जो मिक्सचर होता है ये हिट्रोजीनियस होता है, तो जब आप इसको हीट करते हो तो ये आयरन सल्फाइड बनता है। ये क्या होता है बच्चों, कंपाउंड। तो इस केस में ये तो हिट्रोजीनियस होता है और ये होमोजीनियस होता है। तो यहाँ पे X जो होगा वो हिट्रोजीनियस होगा और Y जो है वो होमोजीनियस होगा। तो A ऑप्शन यहाँ पर सही है। सही। तो यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ है। इसमें उन्होंने कहा सैंपल X इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर ऑन हीटिंग इट इन एक्सेस ऑफ एयर। सही, Y इज फॉर्म्ड। तो अब आपको बताना है X और Y की क्या प्रॉपर्टी होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। यहाँ पर आपको रिएक्शन बतानी है बच्चों। रिएक्शन तो आप याद कर लीजिएगा, इसके पीछे जो लॉजिक होता है वो आप सिर्फ 10th क्लास में ही समझ सकते हैं।
क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है कौन सी रिएक्शन सही है। क्लियर है? तो मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूँ। आपको ये देखना होता है यहाँ पे आयरन के कितने एटम्स हैं, 8। यहाँ पे भी आयरन के कितने एटम्स हैं, 8। सल्फर के यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 8। यहाँ पे भी सल्फर के कितने एटम्स हैं, 8। तो ये रिएक्शन यहाँ पर सही है। ये वाली क्यों गलत है? आयरन 2 सही, सल्फर 3 और सल्फर यहाँ पे 3 है। सही है? उसके पीछे रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है बच्चों, जब भी हम आयरन और सल्फर को आपस में रिएक्ट करते हैं तो आयरन सल्फाइड बनता है। क्या बनता है? आयरन सल्फाइड बनता है। सही है? तो FeS तो बन सकता है, मगर ये पॉसिबल नहीं होता Fe2S बन जाए, Fe2S3 बन जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो FeS बन सकता है, इसका 8 टाइम्स भी बन सकता है, इसका 10 टाइम्स भी बन सकता है, मगर इसका ये नहीं बन सकता Fe2S3, ऐसा कुछ भी नहीं बन सकता है। ना ही Fe2S2 बनता है, ना ही Fe2S बनता है। क्लियर है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। वैसे आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे क्योंकि ये 10th में ही आपसे पूछे जा सकते हैं बस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा है टेकिंग मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर इन 1 वॉश ग्लास। हमने एक वॉश ग्लास लिया, उसके अंदर आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर ले लिया। इन अदर वॉश ग्लास पुट आयरन सल्फाइड, उसके अंदर हमने क्या किया? आयरन सल्फाइड रख दिया। नाउ मूव अ बार मैग्नेट ओवर द बोथ द वॉश ग्लासेस। अब हमें क्या करना है? दोनों के ऊपर जो है बार मैग्नेट को घुमाना है। सही है? तो आपको क्या दिखेगा? बार मैग्नेट जो है वो सिर्फ आयरन फिलिंग्स को ही अट्रैक्ट करेगा। सही है? देखिए पहले में उन्होंने क्या किया है, आपने 2 मिक्सचर लेने हैं। सही? टेक मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर, सॉरी आपको एक मिक्सचर लेना है किसका? आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर का, एक वॉश ग्लास के अंदर। दूसरे वॉश ग्लास के अंदर आपको आयरन सल्फाइड का कंपाउंड लेना है। अब आयरन सल्फाइड जो होता है ये कंपाउंड होता है और इसमें कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। अब आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर का जो मिक्सचर होता है ये क्या होता है बच्चों? ये सिंपल मिक्सचर होता है और इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। किसके कारण? आयरन के कारण। इस मिक्सचर में से जो आयरन होता है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ क्या लिख कर आओगे? बार मैग्नेट जो है सिर्फ आयरन फिलिंग्स को ही अट्रैक्ट करेगा, ना तो वो सल्फर पाउडर को अट्रैक्ट करेगा, ना ही वो आयरन सल्फाइड को अट्रैक्ट करेगा।